Good morning, everyone. Welcome to your TSN English class. Today, we'll be starting the 10th video of our chapter, The Enemy, from class 12th, book Vistas. Come to page number here, that is page number 40 of your book, that I thought they had come to arrest you. And today we'll be reading your chapter, or today let's read the chapter from here, from the first paragraph here. But before this, I would like to tell you, as usual, the previous line, so that we have an idea about that डॉक्टर सैदो जब उनके घर में प्रिजनर पुलिस आती है, दैट ओल्ड ऑफिशियल यूनिफॉर्म में कोई आता है, दैट आफ्टर ऑफ हिज विजिट Hannah and Dr. Sado, especially Hannah, she is like totally frightened at that time, and she felt more tired, and she felt that कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी उन्होंने उस prisoner को अपने घर में रख के. So I thought they had come to arrest you, she said. He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid of him. Sado goes to see General. Of course, the General said weakly. I understand fully what is because I once took a degree in Princeton. He's so few Japanese have. I care nothing for the man, Excellency Sado said, but having operated on him with such success, yes, the general said, it only makes me feel you more indispensable to me. Evidently, you can save anyone. You are so skilled. You say you think I can stand one more such attack as I have had today. Not more than one, Sado said. Then certainly I can allow nothing to happen to you, the general said with anxiety. His long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. You cannot be arrested, the general said, closing his eyes. Suppose you were condemned to death, and the next day I had to have my operation. So, here what was going on, students? That after the visit of that official uniform man who is from like general, it seemed to him that that if were going to be arrested, she said. तो डॉक्टर सैरो से है ना कहती कि उसे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो अरेस्ट हो जाएगा. So he stared into her worried eyes, Dr. Sado, and he will give to do something with the man of for your welfare. And he said with anger, and somehow he must get out of there. So है ना अपने हस्बैंड को और डॉक्टर सैदो कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें इस प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, बिकॉज दिस इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर ओन. सो डॉक्टर सैडो हैं, गोज टू चेक द जनरल, वो देखने जाते हैं कि जनरल है या नहीं है. ऑफ कोर्स द जनरल सैड इन वीक टोन. तो वो कहते हैं कि येस जनरल है. आई कैन अंडरस्टैंड, बट वॉट दैट इज़ बिकॉज he said had in degree like Princeton that you will hardly find any Japanese with this degree, and he don't have any soft corner for that human excellency. डॉक्टर सैदो ऐसा कहते हैं, but he have operated him with such success कि डॉक्टर सैदो कहते हैं मेरे कोई उससे पर्सनल रिलेशन नहीं है, एंड आई एम नॉट काइंड ऑफ दैट पर्सन कि मैं उसे बचाना ही चाहता था. सडनली वो मुझे मिला, एंड आफ्टर दैट मैंने उसे बचाया, और मेरी सर्जरी जो है वो बहुत सक्सेसफुल रही. तो जनरल कहते हैं श्योर. सो ड्यू टू दिस ही सेड दैट ही फाइंड वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. नो वन कैन रिप्लेस यू. कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है. अपेरेंटली यू हैव बिकम सो स्किल्ड दैट यू कैन सेव एनी वन. तो जनरल कहते हैं कि तुम इतने स्किल्ड सर्जन हो दैट यू कैन सेव एनी वन, तुम किसी को भी बचा सकते हो. सो अकॉर्डिंग टू यू दैट ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड ओनली वन सच अटैक दैट ही फेस्ड टुडे. तो वो कहता है कि ये तो तुम्हारी सिचुएशन है, दिस इज़ लाइक दैट यू हैव फेस्ड दैट वन सच अटैक. सो ओनली वन सैडो सेड. तो डॉक्टर कहते हैं केवल एक ही बार. देन आई मस्ट, सो देन ही मस्ट
protect you from being hurt with anything. So जनरल जो है वो बहुत एंशियसली और उससे ये कहते हैं that he must protect you from being hurt with anything. तो शायद वो तुम्हें बचा लेगा. So there was no expression on his long Japanese face. जो डॉक्टर सैडो के लंबे से जापानीज फेस पे कुछ भी नहीं दिखता, एंड विच सजेस्टेड दैट ही वॉज थिंकिंग समथिंग, जिससे पता चलता है कि डॉक्टर सैडो के माइंड में अभी कुछ और ही बात चल रही है जनरल से बात करते हुए भी. सो ही वॉज फिजिकली प्रेजेंट ओवर देयर बट mentally he was not. So you must not be expression of you must not be arrested. जो है वो जनरल अपनी keeping the eyes closed वो पूछते हैं कि तुम अरेस्ट नहीं हुए. Guess you are sentenced to death and I had to have my operation the following day. So वो कहते हैं कि guess करो कि तुम्हें फांसी पे चढ़ाया जाए और उसके बाद मेरा ऑपरेशन हो से रिलेटेड. सो यू मे टेक द सर्विस ऑफ द अदर सर्जन एक्सीलेंसली, सैडो सजेस्टेड. तो सैडो कहते हैं ओके अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम्हें किसी दूसरे सर्जन की सर्विस लेनी पड़ेगी. सो डॉक्टर जनरल सो जो जनरल हैं वो कहते हैं कि आई डोंट ट्रस्ट एनी बडी, दोज हु आर बेस्ट हैव हैड ट्रेनिंग बाय द जर्मन्स एंड इवन इफ आई लूज माई लाइफ दे विल कॉल इट सक्सेसफुल ऑपरेशन. और अगर ऐसा करते वक्त अगर कोई नए सर्जन को मैं लेता भी हूँ और मेरा ऐसा ऑपरेशन करता है तो वो मुझे मार देगा और फिर भी उनका ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल होगा. सो इट डज़ नॉट मैटर व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू दे हैव, वो ऐसा ही साइट, एंड इट इज़ फैक्ट ऑफ पिटी दैट वी आर नॉट एबल टू कंबाइन द जर्मन रथलेस विद द अमेरिकन. सो वो ऐसे कह रहे थे दैट वी आर नॉट एबल टू डू दैट. सो let's read here, students. The old surgeon excellency Sado suggested, trained by the Germans, and after that would consider the operation successful even if I died. So I have already told you about this. So let's read from here. Sado smiled. I am not quite sure, he said, but for sake I would be willing to try, excellency. Sado जो है वो स्माइल करते हैं एंड वो बोलते हैं आई एम नॉट श्योर बट मैं आपको ये कह सकता हूँ फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई, एक्सीलेंसी. आपके लिए मैं एक्सीलेंसी जो है वो ट्राई करूँगा. द जनरल शुक हिज हेड. आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट case, he said. He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over. और जनरल अपना सर हिला देते हैं एंड आई हैड रादर नॉट टू बी टेस्ट केस. और डॉक्टर सैदो को मेंशन करते हैं दैट आई एम नॉट द वन जिस पे तुम कोई टेस्ट कर पाओ. ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म्ड. और सडनली वो थोड़ा वीक और ओवरवेल्म्ड फील करने लगते हैं एट दैट टाइम. सो व्हाट वाज गोइंग ऑन देयर, that official in times and such as these repeated victory brought great responsibilities all over. So डॉक्टर सैडो कहते हैं कि अगर इस तरह हम सर्जरीज परफॉर्म करते हैं इफ़ वी like successful in all those surgery, so not only we have to like be happy but lots of responsibilities were going on in our mind. So the South Pacific, it is very unfortunate that this man should have washed upon your doorstep, he said irritably. So students, move on to next page. So Dr. Sado कहते हैं that how's that possible that general nodded that he must not use that test, and he once had felt weak and remembered the duties of official at that such time, and these when he was like being burdened with responsibility with one by one victories. So it is very unfortunate that the waves have thrown up this young man to your doorstep, he said irritably. तो ऐसा जनरल बहुत इरिटेट होके कहते हैं कि ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हुआ कि ये आदमी तुम्हारे ही डोर स्टेप पे आया हो. आई हैव द सेम ओपिनियन, सेड सैडो जेंटली. तो डॉक्टर सैडो कहते हैं येस सर्टेनली आई वुड बी वेरी नेचुरल, एंड सैडो एग्रीड इन द फैक्ट दैट इट सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट. कि मैं भी बहुत आपकी तरह यही सोच रहा हूँ दैट हाउ दैट कोइंसिडेंस हैपन्स विद मी. गुड, द जनरल सैड यॉर्निंग. दे आर वेरी capable Saiyans, and they make no noise, and they know the trick of inward bleeding. If you like, I can even have them remove the body. Sado considered that perhaps would be best, excellency, he agreed. Thinking of Henna, he left the general presence then and went home, thinking over the plan. In this way the whole thing would
like you can say that a whole thing would be taken out of his hand. He would tell Hannah nothing, since she would timid at the idea of assassins in the house, and yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. How else could rulers deal with those who opposed them? So he refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where Americans was in bed. But as he opened the door, to his surprise, he found the young man out of the bed and preparing to go into the garden. So let's read about the next situation, that डॉक्टर सैदो जो है अपनी बात जब जनरल को कह देते हैं दैट द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ, तो जनरल उसे बोलते हैं दैट आई हैव द सेम ओपिनियन। सैदो जो है थोड़ा जेंटली कहते हैं द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट ही शुड बी किल्ड क्वाइटली, द जनरल सेड। तो जनरल कहते हैं कि आई हैव अ सोल्यूशन इन माई माइंड, कि अगर कोई ऐसे तुम्हारे डोर स्टेप पे आया है तो इट माइट हैव पॉसिबल दैट पीपल विल ब्लेम यू इन योर फ्यूचर or that man will be in danger. So there is a best solution that he should be killed quietly, उसे चुपचाप मार दिया जाए। You will not kill him, but someone will who does not know him. तुम उसे मारोगे नहीं तो कोई और उसे मार देगा। I have tried it, Zacians. Suppose two of them come to your house tonight or any night, you don't have to know anything about it. क्या पता तुम्हारे घर कोई ऐसा आए या तुम्हें पता भी नहीं हो, आ जाए कल और वो उन्हें मार दे। The weather is warm now. It would look completely natural that you leave the outer partition of white man's room open to the garden when he is asleep. तो तुम्हें क्या पता कि कब कोई आके जो है white man को तुम्हारे यहाँ मार के और चला जाए when he was like in asleep condition. So there's like no doubt it would look natural that Sado agreed on that opinion, and it in fact the door remains open every night because Sado सोचते हैं कि हमारे घर के तो गेट हर दिन खुले रहते हैं। So good, the general said yawning. तो general जो है yawning करते हुए कहते हैं that's so good. So they are extremely professional killers. They will come without noise and they know how to perform inward bleeding. So डॉक्टर जनरल जो है वो कहते हैं कि जो ऑफिशियल्स मैं तुम्हारे यहाँ भेजूँगा उस अमेरिकन को मारने के लिए, द पीपल वो लाइक प्रोफेशनल किलर्स एंड बहुत दे डोंट मेक एनी काइंड ऑफ नॉइज़, और बिना नॉइज़ करे ही वो तुम्हारे यहाँ इनवर्ड ब्लीडिंग करके या उस व्यक्ति को मार के चले जाएंगे। एंड इफ़ यू विश आई कैन ऑर्डर देम टू इवन रिमूव द बॉडी। अगर तुम चाहते हो कि तो मैं उन्हें ऑर्डर दे दूंगा, वो बॉडी भी तुम्हारे यहाँ से रिमूव करके ले जाएंगे। सैदो थॉट फॉर अ मोमेंट दैट वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन, एक्सेलेंसी। एंड सैदो कुछ मिनट्स के लिए सोचते हैं। ही सेड दैट ओके दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। सो ही दैन टुक लीव फ्रॉम जनरल एंड केम होम। और वो वहाँ से चले आते हैं डॉक्टर सैदो और अपने घर आ जाते हैं। एंड थिंकिंग ओवर द प्लान, और प्लान के बारे में सोचने लगते हैं। नाउ ही वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट द लीगल मैटर। अब वो सोचता है कि मुझे लीगल मैटर्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो ही वुड हाइड दिस फ्रॉम हैना एंड ही फियर्ड इट माइट स्केयर हर दैट समबडी वुड बी लाइक द वे फॉर द रूलर्स टू सप्रेस एंड दोज हु। सो वो ये सब कुछ हैना से छुपा लेता है। एंड सच पीपल वर इसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉज। और इस तरीके की स्टेट में ऐसे लोगों का होना लाइक प्रोफेशनल किलर्स हु वर लाइक द हिडन किलर्स, ऐसा होना ज़रूरी है बिकॉज जापान अभी जिस सिचुएशन में है या जापानीज पीपल जिस सिचुएशन में है उसमें ऐसे लोगों का हायर करना इट्स लाइक ऑल्सो नेसेसरी। सो इट वॉज ओनली द, यू कैन से दैट ओनली द वे for the rulers to suppress who raise their voice against them. So ये एक तरीका है रूलर्स का जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है या समथिंग पीपल लाइक दैट प्रिजनर वो इस प्रकार उससे ट्रीट करता है। तो ही हैड डिसाइडेड नॉट टू रिवील एनीथिंग टू एनीवन एंड ही हैज़ एंटर्ड द रूम while the American man was in bed. So बिना किसी को ये सब कुछ रिवील किए हुए he was entered in that American bed. But as soon as he opened the door he became surprised to see the man of his bed. So जब वो man was out of his bed. So when Dr. Sado reached there in the room of that man, he
saw that man is out of his bed and was preparing to go into the garden, और वो अपने आप को गार्डन में जाने के लिए प्रिपेयर कर रहा था. So let's read next. So what is this, he exclaimed. Who gave you permission to leave the room? तो डॉक्टर सैदो उससे पूछते हैं that who gave you permission to leave that room? I am not used to waiting for permission, Tom said gaily. So Tom कहता है मैं किसी की परमिशन का इंतज़ार नहीं करता. Gosh, I feel pretty good again. आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर. But will the muscles on the side always feel stiff? लेकिन ये जो साइड की मसल्स हैं इनसे मुझे लग रहा है जैसे मैं स्टिफ हूँ. It is so, सैदो inquired. तो सैदो ने कहा ऐसा ही होगा बिकॉज तुम्हारी सर्जरी हुई है. He forget all else. Now I thought I had provided against that. He murmured. वो कहता है कि नाउ अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए. ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट एंड गेज्ड एट हीलिंग. वो डॉक्टर सैदो जो है मैन की शर्ट को थोड़ा सा लिफ्ट अप करते हैं और उसकी हीलिंग्स पर ध्यान देते हैं दैट उसकी जो वूंड्स हैं वो कितना हील हो गए हैं. स्टूडेंट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. Massage may do it, he said, if exercise does not. So डॉक्टर सैदो कहते हैं उस मैन को that do you feel so? And he remembered he felt that nothing, and now he checked and provided against it. So he advised that man, Dr. Sado, that look at your scars and it will get okay with massage, and if exercise do not make any improvement. तो डॉक्टर सैडो से एडवाइस करते हैं that after exercising भी तुम्हें लगता है कि there was no improvement in your wound, then you can massage on that. So that was going on there. So it won't bother me much, the young man said. तो the young man है वो क्या कहता है, it won't bother me much, मुझे ये सब कुछ ज़्यादा bother नहीं कर रहा है. So it was like that कि मुझे इन सबसे ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है. The young man said, his younger face was gaunt under the stubbly blonde beard. Say, doctor, I have got something I want to say to you. If I hadn't met a Jap like you, well, I would not be alive today. I know that, Sado bowed, but he could not speak. Sure, I know that, Tom went on warmly. His big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there would not have been a war. So जो डॉक्टर सैडो हैं इस पैराग्राफ में उनके और जो टॉम है एन अमेरिकन प्रिजनर उनके बीच की कॉन्वर्जेशन बताई है. सो वो क्या बोल रहे हैं आपस में एक दूसरे को, दैट आई डोंट हैव मच इशू विद दिस. दैट द यंग मैन जो है वो उनको कहता है दैट हिज यंग फेस वॉज लुकिंग सो वीक एंड कवर्ड विद स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड. उसकी ब्लॉन्ड बियर्ड यानी ब्लॉन्ड इज अ कलर, सो ब्लॉन्ड कलर की उसकी बियर्ड थी. से तो डॉक्टर ऐसा कहते हैं दैट आई हैव बिन वांटिंग टू टेल यू समथिंग फॉर सम टाइम. कह रहे हैं मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ. इफ़ देयर इज़न पीपल लाइक यू इन जापान. सो क्या कहता है टॉम कहता है या जो अमेरिकन प्रिजनर टॉम है वो डॉक्टर सैदो से कहते हैं कि अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सभी लोग जापान में आपके जैसे होते इट वुड नॉट बी, तो वो आज जिंदा नहीं होता. आई बिलीव इट, मैं ऐसा आपको कहता हूँ. एंड सैडो बोर्ड बट सैड नथिंग. सैडो उसके आगे रिस्पेक्टफुली वो करते हैं बट कुछ कहते नहीं हैं. एंड श्योर कहता है वो कि दैट बिलीव दैट टॉम अपनी वार्मनेस को कंटिन्यू रखता है. ही वॉज ग्रिपिंग अ चेयर विथ हिज हैंड्स विच वर लाइक वाइट एट नकल्स. एंड I am of the opinion that if all the Japanese were like you, that war would not have been started. कि अगर सभी Japanese आपके जैसे होते तो शायद यहाँ पे war नहीं होती. Thank you students. We'll continue our next part from this page 42 in our next video. Till then, stay safe.